अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये वाला सवाल 784 over 841, we have also find out the square root. Question number question number 2, its third part, exercise same 2.4 exercise. Before that we solved exercise 2.4 question number 1 by prime factorization method, but now we have to solve the division method. Now I will introduce to you division method. In this division method, I will also explain a little bit also use of the Urdu also, maybe that if your concept will be properly clear, right? First of all, no need to make the factors. First, we have to make the square root of numerator, then denominator, then we will put their answer. Okay? 784. When you are taking square root with the help of division method, first step is that you have to make the pairs and start from the right side. If the last digit is 1, then leave it 1. If the last digit will become pair, then pair. But start pair from the right hand side, okay? Not from the left hand side. The first step. Keep this is first step. The second step in multiply in division, before that when you are dividing that, like 2 3s are 6, 2 4s are 8, or 2 5s are 10, here such type of multiply you can't use. Here we have to use the table such like 2 multiply by 2, 1 multiply by 1, 3 multiply by 3, 4 multiply by 4. The first step is also same, but the second step little bit change, then I will explain that how is change that one. First of all, the first number you will check that one. 7. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9. So which is the suitable multiplication for that? 2 2s are 4, 2 2s are 4, because here you will write 2, here 2 3s are 6, 6 is the next number. But this multiplication in the division method of square root division method is wrong. Square root के division method में this method is not possible to apply. Okay? हमें पहला स्टेप ये करना है कि आपने सेम हो और आपके पास उससे कम हो, नंबर चेंज नहीं करने, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेम नंबर, here 2 then 2, 3 3, 4 4. The first step, 2 2s are 4, okay? After that, what is the remainder? 7 minus 4, 3. In simple division, we are taking down one by one digit, then next digit. But in square root division method, you have to make the pair down. पूरा का पूरा पेयर नीचे लेके आना है, एक नंबर नीचे नहीं लेके आ सकते वरना गलत हो जाएगा. तो ये पूरा पेयर नीचे आएगा, ये पूरा पेयर आप यहाँ नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 384. 384. What is the next step? The next step, the double of this quotient. Double of this quotient. पहला आप इसे double of this quotient कर लें. After that, इसके आगे जो नंबर लिखना है वो नंबर आपने सेम से मल्टीप्लाई करना है और वो पूरा इस पे जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है, इसके आगे मैं लगाता हूँ 4, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. 2 2s are 4, 2 4s are 8, नहीं जा रहा, ठीक है? अगर मैं 3 चेक करता हूं तो 84 है, ये 384 है, बहुत गैप है. तो मैं ऐसा करता हूं, आपके पास एक क्लू बताता हूं. ये 4 है, लास्ट डिजिट 4 किस में आता है? अब देखो, लास्ट डिजिट 4 आपके पास आता है जब आप मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 2s are 4 आ रहा था वो इससे कम हो गया. 3 3s are 9, हमें लास्ट में 9 नहीं चाहिए, गलत. 4 4s are 16, 6 आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए. 5 5s are 25, वो भी नहीं. 6 6s are 36, वो भी नहीं. 7 7s are 49, वो भी नहीं. 8 8s are 64, तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? हमें इसके आगे रखना चाहिए 8, और यहाँ भी 8 8 8s are 64. 4 आया क्योंकि ये 4 और ये 4 में इसकी बात कर रहा था, ठीक है? ये 4 और यहाँ पे आपके पास 6 कैरी. 8 4s are 32, 32 plus 6 38. पूरा हो गया डिवाइड कि नहीं हो गया? दोबारा बताता हूँ, सुने. ये डिजिट मैंने देखा और मुझे ये पता था कि पूरा का पूरा डिवाइड होता है,
3 डिजिट है, पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होता है। तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे जब 4 आने के सिर्फ, क्योंकि अपने आप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल नंबर से मल्टीप्लाई करना नहीं है। 2 2s are 4, 2 2s are 4 किया तो ये आगे, अगर मैं यहाँ 3 और यहाँ 3 लिखता, 3 3s are 9, तो लास्ट डिजिट मेरे पास तो 4 है, समझो गलत। अगर 4 4 लिखता, 4 4s are 16, तो यहाँ क्या आ जाता 6, यहाँ 1 कैरी, लेकिन मुझे लास्ट डिजिट क्या चाहिए 4, तो वो कहाँ पे आ रहा था, वो 8 8s are 60, सिर्फ वहीं पे आ रहा था। तो फिर आपने क्या करना बेटा, यहाँ भी 8 लिखना है, यहाँ भी 8 लिखना है। अब ये बात आप ख्याल रहे कि आप कहेंगे सर आपने तो कहा था साथ साथ करना है। फर्स्ट में सेम सेम होना चाहिए, सेकंड के अंदर ये 2 डिजिट सेम होने चाहिए यहाँ, यानी 4 के आगे 2 किया तो नीचे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के आगे अगर आपने 8 लगाया है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये 2 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। अब भी देखिए यहाँ 8 लिखा तो यहाँ भी 8 लिखा, तो आपके पास क्या आ गया 384 कंप्लीट डिवाइड होकर 28 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। अब एक मैंने न्यूमरेटर को कर लिया, अब बारी आ जाती डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर पे भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ये रफ प्रोसीजर, इसे मैं रफ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 841, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू मेक द पेयर, एंड पेयर विल स्टार्ट फ्रॉम विच साइड, द राइट हैंड साइड। यहाँ से आपने पेयर स्टार्ट की, फर्स्ट, दूसरा पेयर पूरा नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, नो इशू, ठीक है। कौन सी टेबल यहाँ पे सूट करेगी, अगेन वही 2 2s are 4, क्यों 3 3s are 9, 8 से बढ़ जाता है, 8 से बढ़ जाता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 2 2s are 4, रिमाइंडर 4, नीचे एक नंबर उतारेंगे या पेयर, गुड, पूरा पेयर नीचे आएगा 4 4 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, गुड, डबल ऑफ दिस, इसका डबल। अब बताओ लास्ट डिजिट 1 है, तो लास्ट डिजिट 1 हमें चाहिए क्योंकि मैंने 4 के बाद नंबर ऐड करना है, तो मुझे 1 सिर्फ 2 जगह पे नजर आ रहा है। एक तो 1 को 1 के साथ कर दूं फिर 1 आता है, दूसरा 9 9s are 81, देखिए जब 9 9s are करते हैं तो 81, 1 इधर और 8 कैरी, 9 4s are 36, 36 प्लस 8 44, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मुझे कैसे पता चला कि मैंने डायरेक्ट 9 क्यों किया, कि मुझे 1 चाहिए था, और 9 9s are 81, 81 लास्ट में यहां आता है। अगर आपके पास कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बताता चलता हूं। देखें 4 4s are 16, लास्ट डिजिट 16 है, 5 5s are 25, लास्ट डिजिट 5 है, 6 6s are 36, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, इसी तरह से 7 7s are आपके पास 49, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है, 8 8s are 64, लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो 9 9s are 81, लास्ट डिजिट 1 आ रहा है, और मुझे यहाँ क्या चाहिए था 1, दैट्स वाई 1 सिर्फ 2 जगह पॉसिबल हो सकता था, एक 1 1 के साथ करो, दूसरा 9 9s are 81 आ रहा है। पिछले सवाल में 4 था, 4 2 जगह पॉसिबिलिटी थी, कहाँ थी, एक तो 2 2s are 4 था क्योंकि 3 3s are 9 होता है, एक 2 2s are 4 था पिछले क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा 8 8s are 64। पहले मैंने 2 2 को चेक किया, वो नंबर कम हो रहा था, फिर मैंने 8 चूज किया। इधर भी पहले मैंने क्या चूज किया 1 1s are, क्योंकि मुझे लास्ट में 1 चाहिए, वो सिर्फ 41 है, मुझे तो 441 चाहिए, तो दूसरा नंबर 9 वाला चूज किया, तो 9 9s are 81, तो वो पूरा का पूरा हो गया। ये रफ प्रोसीजर है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बेटा, अब 9 और यहाँ ये 2 नंबर सेम लिखने हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये 2 नंबर यहाँ सेम बनते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 441, फिनिश। रफ प्रोसीजर को ख़त्म करते हैं हम, तो रफ तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए था, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मारा या 0 लगाएं, एक ही बात है। अब आपने क्या लिखना है बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है 28 को जब 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही सेम आता है। यहाँ पे 28 की पावर 2 कर दें और इधर यहाँ पे 29 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि स्क्वायर ही स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो द फाइनल आंसर इज 28/29। इज इट प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर?
प्रॉपर, गुड, बिकॉज डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता. सो दिस इज आवर आंसर. दिस मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड. Which method? Division method. In the same way, you can solve the other question also. You have to take numerator. First, you have to take the square root of numerator by division method. Then denominator by division method. जो आपके पास क्वोशंट आए, दोनों के क्वोशंट को यहाँ फिल करें, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें. जब उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल बाय द स्क्वायर रूट, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. इसमें से जो आपके पास प्रॉब्लम होगी फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. 2.3 एक्सरसाइज के अंदर आप ऑलरेडी ये मेथड यूज़ कर चुके हैं. ठीक है, ओके. 2.3 में सिर्फ और सिर्फ बगैर फ्रैक्शन के दिया गया था, बगैर फ्रैक्शन के दिया गया, यानी 784 है, तो आपने इसको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना था. यहाँ पे उसने फ्रैक्शन में यानी दो सवालों को कंबाइन करके आपको दे दिया और कुछ भी नहीं है. ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.